हेलो एवरीवन, लेट्स डू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं एंड देन वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स. So there are four large identical metallic plates you can see here, and they are large and they are metallic. ठीक है, and they are placed as shown in the figure. Plate 2 is given a charge q. 2 को हमने q amount of charge दिया. All other plates are neutral. Now plates 1 and 4 are earthed. You can see this is connected to earth, this is connected to earth. अर्थ से कनेक्शन का मतलब क्या होता है? अर्थ से कनेक्शन का मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो. नेवर एवर थिंक लाइक कि इफ समथिंग इज कनेक्टेड विद द अर्थ देन टोटल चार्ज ऑन इट विल बी जीरो इन ऑल केसेस. नो, this is not always true, but always one thing is true. If your container metallic thing is connected with the earth, that is potential of this will be zero. Okay, so this is universal fact. Now area of each plate is given and that is equal to A. First thing first, what we have to do, find charge appearing on right side of plate 3. So I mean प्लेट थ्री के राइट साइड पे चार्ज क्या अपीयर होगा? सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी थिंकिंग चार्ज अपीयर क्यों होगा? क्योंकि मेटल्स है और एक मेटल के पास अगर चार्ज है और उसके सराउंडिंग में दूसरा मेटल हो, मेटल मीन्स दे हैव फ्री चार्जेस, राइट? सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट सम नेगेटिव चार्ज हियर, लाइक दैट. So definitely charge is going to appear on both plate 1, 3 and 4. ठीक है, so let's navigate it. Suppose कर लो 2 के एक surface पे मैंने चार्ज दिया small q. क्योंकि if on plate 2 you're giving q amount of charge, that will get divided on two of its surfaces because these are metal, I mean rectangular sort of plates. So उस rectangular plate का कितना face होगा? दो होगा ना, एक front एक back, right? So front पे मैंने small q charge दिया, back पे कितना बचेगा? q minus q. And I have made a detailed video on how to do the charge distribution on plates like this and how to calculate what will be the values of charges on each plate. So that you can check now by clicking on the I button. But for now, let's focus on this question. You can check that later on. So अगर ये Q minus Q चार्ज हुआ है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? आई हैव टोल्ड यू वन रूल दैट facing surfaces will always have equal and opposite charges. So यहाँ पे Q minus Q है तो यहाँ पे भी same amount of charge होगा with negative sign. So this is the distribution I have done. Now for plate 3 if you think, तो ये surface देख लो और ये surface देख लो. These two surfaces are facing surfaces, right? So equal opposite charge होगा minus Q. And since this third plate is a neutral plate, अगेन इट विल स्टे न्यूट्रल क्योंकि ये कोई भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, राइट? अगर ये बैटरी से कनेक्टेड होता चार्ज चेंज होगा. इफ इट इज कनेक्टेड टू अर्थ चार्ज में चेंज, बट सिंस इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम एंड इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज स्टेज कंजर्व्ड. ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसके पास जीरो चार्ज है, एक पे माइनस क्यू गया तो दूसरे पे प्लस क्यू जाना चाहिए. नाउ फ्रॉम द रूल वन, दैट इज की फेसिंग सर्फेसिस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू. ठीक है, अब देखो इस साइड मैंने कोई चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, इस साइड भी कुछ नहीं किया, क्योंकि दिस साइड इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड व्हाट एवर चार्ज इज हियर दैट दिस अर्थ विल ईट, दैट इट विल कंज्यूम. ठीक है, सो इसलिए मैंने इस साइड चार्ज कुछ भी नहीं दिया है. ओके, सो इट इज लाइक दिस, it is like this. But still plate 4 has charge, right? Plate 4 has charge minus q this side, and plate 1 has also charge minus q on that side. So even though plate 1 and 4 are earthed, connected to earth, total charge on it is not zero. और ये zero क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन सिस्टम जो प्लेट 1 है ना, इट हैज समथिंग इन इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में प्लेट 2 है and facing surface of plate 2 has a positive charge of q minus q, and this positive charge is holding this negative charge this side. अगर आप प्लेट 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, सिस्टम 1 को आप अकेला रखो, इस पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा एंड हेंस जीरो पोटेंशियल. ठीक है, सो इट इज लाइक दिस. अब हम अब हमें करना क्या है? फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन राइट साइड ऑफ प्लेट 3. सो दिस वर द कॉन्सेप्ट्स. अब देखो चार्ज के वैल्यू निकालने के लिए वी नीड टू नो द वेरिएबल स्मॉल q, राइट? क्योंकि ये हमें नहीं पता, कैपिटल Q तो Q है, Q के टर्म में ही हमें आंसर लिखना है, सो दैट इज ऑलरेडी नोन. हमें क्या पता करना है? स्मॉल q का वैल्यू. सो
इन द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन दिस टॉपिक, वहां पे मैंने ये बताया था कि प्लेट के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बिकॉज ऑफ ऑल द सर्फेसिस, बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन all surfaces, and since this point is inside a metal, inside a conductor, electric field here will be zero. So इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सारे सर्फेसिस की वजह से और उसको ऐड करके जीरो कर दो, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। बट साथ-साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर तुम्हारा सपोज़ कर लो, वी हैव डन देयर 3 प्लेट सिस्टम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयर आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है। लेट्स से यहाँ पे जो चार्ज होगा वही यहाँ पे होगा बट ऑपोजिट सेंस में, राइट? सो अगर ऐसा है और इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल एड अप टू 0। कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा कैलकुलेशन में, इन दोनों की वजह से भी 0 होगा। सो व्हाटएवर calculation you're left with is because of charge on this surface and charge on this surface। इन दोनों surface की वजह से चार्ज जो भी होगा, उसकी वजह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो एंड देन यू यूज टू गेट द आंसर। तभी आंसर मिलता है, क्योंकि फेसिंग सर्फेसिस की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, जैसे इसके लिए अगर आप निकालोगे तो आप लिखोगे Q by 2a epsilon naught। This is what, this is a formula, sigma by 2 epsilon naught। This formula we use when we use for a seed which has charge on one of its surface। So here we are calculating electric field because of charge on one of its surface, then we use this, and we use this formula only when the seed is large, very much large, and here it is said that these plates are large, so we can use this formula। अब देखो, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए इस पोजीशन पे निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आएगा, और माइनस क्यू के लिए निकालो तो ऐसे जाएगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। सो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू इन कैलकुलेटिंग क्यू, राइट, स्मॉल क्यू। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फेसिंग सर्फेसिस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी इस तरह से कैंसिल होंगे कि that will not help you in the calculation, and that is why it is wiser to cancel those out already, don't include them in the calculation, क्योंकि वो आपके calculation को करेगा लेंदी। ठीक है, ओनली ये सर्फेसिस को यूज करते, बट हमारे क्वेश्चन में तो ये सर्फेस अर्थड है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, फिर कैसे निकाले? सो दैट इज वाई आई सेड देयर कि मैंने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, दैट इज नॉट इनफ टू सॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज व्हाट, वो टेक्निक ये है कि आप पोटेंशियल चेंज निकाल लो। जैसे प्लेट वन का पोटेंशियल आपको पता है, इट इज जीरो। प्लेट फोर का पोटेंशियल आपको पता है, इट इज जीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट वन एंड फोर इज जीरो, राइट? there is no difference, both are having the same potential equal to zero। सो अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो एंड इफ यू राइट पोटेंशियल चेंज, डन है, देन सम ऑफ ऑल दोस पोटेंशियल चेंज विल बी जीरो, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम जीरो एंड रीचिंग टू जीरो, सो चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। अब आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, डन है, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल चेंज, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है, और इस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, q माइनस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q by 2a epsilon naught, here it will be how much, q by 2a epsilon naught। now you don't have to get confused with the direction of electric field, because यहाँ पे I mean उससे confuse होने की जरूरत नहीं, because the way I am going to write this potential change will make this thing clear। जैसे देखो, when we are moving from plate 1 to plate 2, we are moving from low potential to high potential because we are going from negative plate to positive plate, means we are moving from low potential to high potential, so change in potential is what, positive। so यहाँ पे मैं positive पहले से ही ऐसे लिख दूंगी, और उसके बाद E into D करूंगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। सो आप यहाँ पे लिखोगे Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू D। now if when you are moving from plate 2 and 3, you are moving from positive charge to negative charge, डन है, यानी कि यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज चेंज विल बी नेगेटिव। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आप जा रहे हो, राइट? सो चेंज विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने पहले ही नेगेटिव लिख दिया, डन है। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हो ईडी का वैल्यू, तो क्या लिखोगे, क्यू डी डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट।
Similarly, when you will go from plate 3 to plate 4, you are moving from higher potential to lower, again negative sign, and this is q d by 2a epsilon naught इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन से भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस द मैक्सिमम, and when we are moving opposite to the electric field, potential is increasing the maximum, I would say। So इसलिए इस जब हम यहाँ मूव कर रहे थे ना प्लेट 1 से 2, we are moving opposite to direction of electric field, इसलिए पॉजिटिव आया। एंड प्लेट 2 से 3 in the direction of electric field, प्लेट 3 से 4 in the direction of electric field, and that is why it is negative। ठीक है, चलो अब आप इसको जीरो कर दो, यू विल बी गेटिंग द आंसर। अब लिखो इसको, डी डी को हटा दो, 2a एप्सिलॉन नॉट को हटा दो, क्या दिख रहा है, q माइनस क्यू। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने किया, तुम लोग शायद नोट भी कर चुके होगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस d नहीं है, 2 से 3 में डिस्टेंस क्या है, 2d है, तो यहाँ पे 2d लिखना चाहिए था मुझे, मैंने d लिख दिया था। ठीक है, सो q माइनस क्यू इंटू क्या करोगे, डी को तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखो q माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, इससे कॉमन क्या होगा, d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, तो वो ऐसे भी चला जाएगा। एंड हियर यू आर गेटिंग q minus 3 small q equal to 0. So small q is how much? Q by 3. And this is giving us our answer. So question क्या पूछा था? Find charge appearing on right side of plate 3. So plate 3 को देखो, plate 3 का right किधर है? ये plus q. So answer will be what? Plus q by 3. Done it? Now let's go to the second thing. Find potential difference between plate 1 and 2. सो प्लेट 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो यहाँ पे हमने चार्ज कितना दिया है बताओ, यहाँ पे हमने चार्ज दिया था हाउ मच, प्लस क्यू। ठीक है, सो दिस वाज q बाई 3 एंड दिस वाज q माइनस q बाई 3, सो 2q बाई 3, और यहाँ पे कितना था तुम्हारा, दिस वाज माइनस 2q by 3। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लो, सिग्मा दैट इज 2q by 3 सिग्मा दिस बाई a 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो यहाँ पे 2 पहले मल्टीप्लाई करती हूँ एप्सिलॉन नॉट, 2q by 3a, that this part is your sigma. So sigma by 2 epsilon naught is the electric field, and we have to calculate potential difference. So it will look like this. अब आप इसको सॉल्व करो, टू 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 से कैंसिल कर दो आप, सो दिस इज हाउ मच, q by 3a epsilon naught into d, 2d by 3a epsilon naught. So that will be your answer for this question. ठीक है, so I hope you have understood this question. You have understood that how to distribute charges, and you have understood that if you cannot use the concept of key take calculate electric field inside any point and equate it to 0 to get that variable charge, then you can use another concept also, and that is you can walk the potential change, and then potential change जीरो के बराबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन इट कैन बी सम कांस्टेंट आल्सो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होता कि प्लेट 1 का पोटेंशियल है 2 वोल्ट एंड प्लेट 4 का पोटेंशियल है समथिंग 1 वोल्ट, सो आप चेंज, जो भी चेंज हमने लिखा था ना ऐसे प्लस प्लस करके जो भी लिखा था, दैट शुड बी इक्वल टू हियर 1। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो, आप लोग इनफ स्मार्ट हो, यू कैन नेविगेट थ्रू चेंजेस इन द क्वेश्चंस if you encounter any। So I hope you understood the concept. Even if you feel like you got stuck somewhere, you can always let me know in the comment section. Thank you.